Yeah, good evening. First chapter of geometry, similarity. Let's study for the ratio of areas of two triangles. Basic proportionality of a theorem this chapter contains. Next is converse of basic proportionality theorem. Tests of similarity of a triangles. Property of an angle's bisector of a triangle. Property of area of similar triangle. Ratio of intercepts made on the transversal by three parallel lines. These are the content of this chapter which we have to discuss and we will discuss. Let's proceed with the first. Let's recall for the last topic what we had studied. We have studied ratio and proportionality. The statement, the number a and b are the ratio m upon n. Any two numbers have a ratio. We can find any two numbers are having a ratio. And what is the ratio? Ratio is the simplest form of a fraction. Ratio of the simplest form of that number in a fraction form. And ratio does not have any units. Ratio does not have any units, and it does not contain any common multiple. Once we got a ratio means there should not be any common multiple between that two. So m upon n is also written as the number a and b are in a proportion m is to n. For this concept we consider the positive real number. We know that the length of line segment and area of any figure are positive real number. We never say either we can't find any area that is a negative. Either length of any line segment is negative. If a line is there, that means there is a point, and point is the smallest unit, and it is always a positive. We know the formula of a area of a triangle as the area of a triangle is equals to half into base into height, and it is covered in our 8th standard chapter, 9th standard also. It is the basic of a area of a triangle. Then let's learn what is a triangle. Let's first of all define what is a triangle. Then basic thing is that a triangle is a three-sided bounded figure. Okay, and there are how many types of a triangle? So mainly triangle is divided into two types. That is a 3 with the help of a sides and 3 with the help of a angles. 3 with the help of a sides and 3 with the help of a angle. So I can say that a triangle is named by 6 types, and it is divided into 2 types. That is a sidewise with the help of a side and with the help of a angle. For side, first equilateral triangle. तो त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के नाम होते हैं भुजाओं के साथ, साइड वाइज एंड कोण द्वारा हम उसके नाम अलग करते हैं। भुजाओं के द्वारा अगर देखेंगे तो पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट इज़ अ सम बाहु
त्रिभुज। दूसरा समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। लेट अ ट्रायंगल इज ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। दिस थ्री साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज़ नोन एज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये कॉन्सेप्ट से भूलना नहीं है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपके काम कहाँ आने वाला है, आगे सभी थियरम्स में कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड इज दैट्स अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट्स द आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। इससे ही मालूम पड़ता है सम मतलब होता है बराबर और द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेट्स ट्रायंगल इज पी क्यू आर। इसमें मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, बट दीज टू साइड्स इज नॉट इक्वल्स टू क्यू आर, राइट। जैसा कि हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था अभी कुछ, ये चैप्टर था हमारा पहला वाला चैप्टर, कौन सा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें भी हम लोगों ने देखा था, तो ये एक रेशियो आया था हमारे पास कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और फिर मिला था A1/A2 इज़ इक्वल्स टू B1/B2, और फिर बोले थे इट इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2, और फिर A1/A2 इज़ इक्वल्स टू B1/B2 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू C1/C2। सेम वे सारे के सारे इक्वल हैं, तो इट्स, यहाँ पे हम साइड्स पे जा रहे हैं, यहाँ रेशियो में थे, तो रेशियो का हिसाब अलग होता है। उस समय मैंने बताया था इसको कैसे कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। फिर से बोल देता हूँ, ऑल इक्वल दैट मीन्स वन सिंगल लाइन। फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियोज आर इक्वल, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू द थर्ड, दैट मीन्स इट्स अ पैरेलल लाइन, राइट। एंड इफ first two ratios are not equals to each other, then there is a common solution, unique solution। ये हमने कल भी पढ़ा था, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। अलजेब्रा का पार्ट है ये, जस्ट फॉर अ सेक, कि उसके ऊपर से मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि हाँ इसमें भी हमारे पास देखेंगे तो 3 बार इक्वल दिख रहा है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। एक ऐसा होता है कि 2 बार इक्वल होता है और 1 बार नॉट इक्वल होता है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज दैट स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, व्हाट इज स्केलन ट्रायंगल? तो स्केलन ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। एक भुजा 1 सेंटीमीटर की तो दूसरी 2 और तीसरी 3, ऐसा कुछ अलग अलग। मीन्स नन ऑफ दैट विल बी इक्वल्स टू each other। XYZ means XY is not equals to YZ is not equals to XZ। कोई भी साइड एक दूसरे को इक्वल नहीं होगी। तो ये साइड वाइज हुआ, किसके ऊपर हुआ? साइड वाइज। नाउ कम टू द नेम ऑफ अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। एंगल वाइज अब हम नाम देखते हैं। तो पहला ट्रायंगल हम लेते हैं जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। मैं इस समय हिंदी और इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मराठी में इसका नाम होता है काटकोण त्रिकोण। अगर चाहिए तो सबका बोल सकते हैं, बट नीड नहीं है, क्योंकि हिंदी तक ही हम लोग रहे हैं, जो कि आपके काम आए तभी। तो वैसे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हैं। तो नाउ हियर व्हाट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स अ ट्रायंगल हैविंग 3 sides, 3 bounded sides
बट वन ऑफ द एंगल शुड बी 90 डिग्री। जब एंगल की बात आएगी तो हम ध्यान देंगे किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। कोण की बात आई तो हमें कोण को ही देखना है, एंगल को ही देखना है। ओके, तो एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब एंगल अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, इट मीन्स ये क्या है, पूरे ट्रायंगल के अंदर एक एंगल अगर मुझे 90 डिग्री का दिखा तो मैं बोलूँगा वो एंगल वाइज राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम एंगल का नाम लेते हैं, लेट इट इज़ इक्वल्स टू ए बी सी। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ा एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड नेम ऑफ अ ट्रायंगल विच इज़ दैट, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान देना, मेरी लिखावट पे ज़्यादा मत जाना, मेरी राइटिंग पुअर है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, नहीं तो बोलोगे कि सर आप लिखते क्या हो, दिखाई कुछ देता नहीं है। तो नाम आपको आपके बुक में मिल जाएगा, ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं, और मैं मार्क भी कर दूंगा उस समय पढ़ाते समय ना। अधिक कोण त्रिभुज ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज में मुझे क्या देखना है, एंगल में तीन, किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स तो होते हैं। तो जैसे ऊपर वाले में हमने देखा एक एंगल मुझे 90 डिग्री का दिखा, वैसे मैं इन सबको देखूंगा, इन सबको देखूंगा, थीटा बीटा अल्फ़ा, ऐसे तीन एंगल है मेरे पास। थीटा है एक बीटा है, दूसरा अल्फ़ा है। तो थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, अल्फ़ा इज़ लेस देन 90 डिग्री, बट बीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे ही मुझे कोई भी कोण त्रिकोण के अंदर, पूरे त्रिभुज के अंदर कोई भी एक कोण या एक एंगल का माप 90 डिग्री से ज़्यादा दिखेगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ ये थीटा है, ये बीटा है और ये अल्फ़ा है, मगर यहाँ पे भी आप देखोगे थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, अल्फ़ा इज़ लेस देन 90 डिग्री, बट बीटा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इक्वल आया, 90 डिग्री के इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ग्रेटर आ गया तो इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नाउ कम टू द लास्ट नेम ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज थर्ड वन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।